Hello dear students, hope you may be fine. In this video we are going to take elastic collision in one dimension. So बच्चों, you will consider properly elastic collision in one dimension. इसमें क्या करेंगे इसमें हम दो बॉल्स ले लेंगे. Suppose two balls A and B of masses m1 and m2 are moving initially along the same straight line. So बच्चों, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए डायग्रामिकली मैं आपको शो करूँगा. सपोज टू balls A and B. This is before collision, this is during collision, and this is after collision. So बच्चों, you have to understand elastic collision in one dimension. So this is ये दो balls हैं A and B बिफोर कोलिजन. m1 है मास A बॉल का, u1 है इनिशियल वेलोसिटी, m2 है मास B बॉल का, u2 इज फाइनल वेलोसिटी. दिस इज बिफोर कोलिजन. सो सपोज टू बॉल्स A and B of masses m1 and m2 moving initially along the same straight line with velocities u1 and u2 respectively. When u1 is greater than u2, initial velocity of ball A is greater than initial velocity of the ball u2, the two balls collide with one another. दो balls आपस में collide करते हैं with each other. After collision, suppose v1 and v2 be the velocities of the balls, two balls. If v2 is greater than v1, then two balls will separate after collision. So बच्चों, after collision, suppose v1 and v2 be the velocities of the two balls. अगर यहाँ पर velocity v2 greater होगा, velocity v2 of the ball B is greater than velocity v1, then two balls will separate after collision. वो जब दो balls collide करते हैं, these two balls will separate after collision जब v2 is greater than v1. Here u1 minus u2 is called the relative velocity of approach before collision. So बच्चों, ये आपको अंडरस्टैंड करना है. यहाँ पर हम u1 minus u2 इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी before collision is called the relative velocity of approach before collision, and v2 minus v1 is called relative velocity of separation after collision. So बच्चों, ये आपको याद रखना है. यहाँ पर u1 minus u2 is called the relative velocity of approach before collision, and जब collision होता है तो after collision v2 minus v1 go final velocity minus initial velocity is called the relative velocity of separation after collision. So this is यहाँ पर relative velocity of approach before collision u1 minus u2, और यहाँ पर v2 minus v1 is called the relative velocity of separation after collision. So बच्चों, हमें पता है एज ए लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन द केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन. कि जब इलास्टिक कोलिजन होता है, हमने पहले ही पढ़ा है इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, प्लास्टिक कोलिजन क्या होता है. पिछले वीडियोस में हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है. क्योंकि इलास्टिक कोलिजन में जो लीनियर मोमेंटम होता है वो हमेशा कंजर्व रहता है. वो दैट मीन्स टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन. सो टोटल जब लीनियर मोमेंटम इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन जब होता है, ये क्योंकि ये हम पढ़ रहे हैं इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन. सो इलास्टिक कोलिजन में जो लीनियर मोमेंटम जो होता है वो कंजर्व रहता है. सो बच्चों, उसमें हम क्या कर सकते हैं कि दैट मीन्स जब इलास्टिक कोलिजन कंजर्व लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है इलास्टिक कोलिजन में, तो वी कैन सी दैट टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन is equal to total linear momentum before collision. Both this is after collision and this is before collision. So total momentum of the two balls after collision, total linear momentum of the two balls after collision is equal to the total linear momentum of the two balls before collision. So that means बिफोर आफ्टर कोलिजन क्या है, m1 v1, यहाँ पर बनेगा m1 v1 लीनियर मोमेंटम.
m1v1 प्लस m2v2, दैट वो ये हो गया आफ्टर कोलिजन, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी v1 और वेलोसिटी v2 है, v1 और v2 वेलोसिटी हैं, फाइनल वेलोसिटी, और दैट इज इक्वल टू टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन, वो दैट इज m1u1 प्लस m2u2, बिकॉज लीनियर मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. तो इन केस ऑफ फाइनल मोमेंटम, the total linear momentum of after collision is equal to total linear momentum before collision. This is as per the linear momentum is conserved in the case of elastic collision. So यहाँ पर elastic collision हम पढ़ रहे हैं, elastic collision in one dimension. So total linear momentum after collision is m1v1 plus m2v2 is equal to total linear momentum before collision, that is m1u1 plus m2u2. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम m2u2 इधर शिफ्ट करेंगे, ये बनेगा m2v2 माइनस m2u2, और ये m1v1 यहाँ शिफ्ट करेंगे, ये बनेगा m1u1 ऑलरेडी यहाँ पर है, और ये m1v1 यहाँ शिफ्ट करेंगे, बनेगा m1v1. सो यहाँ पर m2 कॉमन है, क्योंकि हमने यहाँ पर m2 कॉमन निकाल सकते हैं और यहाँ पर m1 कॉमन निकाल सकते हैं. तो ये क्या बनेगा m2, दिस विल बिकम m2 इंटू v2 माइनस u2, एंड दिस विल बिकम m1 यहाँ पर कॉमन निकलेगा, ये बनेगा u1 माइनस v1. इसको रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट. इसी तरह काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व्ड इन द केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन. वो ये हो गया लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन, दैट इज टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इज टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन. इसमें हमारा इक्वेशन फर्स्ट आ गया. इसी तरह टोटल काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है इन केस ऑफ द इलास्टिक कोलिजन, दैट मीन्स टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन. सो टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन क्या होगा, that will be given by 1 by 2 m1v1 square plus 1 by 2 m2v2 square is equal to what total kinetic energy after collision, that is 1 by 2 m1v1 square plus 1 by 2 m2v2 square, because v1 और v2 velocities है, m1 और m2 mass of the two bodies है a and b. तो ये बन गया kinetic energy after collision, that is equal to kinetic energy before collision, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी रहती है कंजर्व इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन. वो दैट मीन्स दिस इज काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन ऑफ द टू बॉल्स, एंड दिस इज काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन ऑफ द टू बॉल्स. 1 by 2 m1v1 स्क्वायर, 1 by 2 m1v1 स्क्वायर इज प्लस 1 by 2 m2u2 स्क्वायर. वो दिस इज टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, because kinetic energy remains conserved in case of the also remains conserved in case of the elastic collision. So ये हमारा रिलेशन बन गया. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हम 1 by 2 कॉमन निकालेंगे, ये बनेगा m1v1 स्क्वायर प्लस m2v2 स्क्वायर. इधर भी 1 by 2 कॉमन निकालेंगे, बनेगा m1u1 स्क्वायर प्लस m2u2 स्क्वायर. 1 by 2 कैंसिल करेंगे ऑन बोथ साइड्स, तो ये बनेगा m1v1 स्क्वायर प्लस m2v2 स्क्वायर इज इक्वल टू m1u1 स्क्वायर प्लस m2u2 स्क्वायर. सो m2u2 स्क्वायर यहाँ शिफ्ट करेंगे और m1v1 स्क्वायर यहाँ शिफ्ट करेंगे. सो ये क्या बनेगा, m2 लेफ्ट हैंड साइड बनेगा m2v2 स्क्वायर माइनस m2u2 स्क्वायर, ये हमने यहाँ पर शिफ्ट किया, और यहाँ पर बनेगा m1u1 स्क्वायर माइनस ये इधर शिफ्ट करेंगे m1v1 स्क्वायर, इधर शिफ्ट करेंगे, बनेगा m1v1 स्क्वायर. सो ये बनेगा m2 यहाँ पर कॉमन निकालेंगे, बनेगा v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, यहाँ पर m1 कॉमन निकालेंगे, ये बनेगा u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर. तो यह बनेगा m2, इसको लिखेंगे a प्लस बी इंटू a माइनस बी, बनेगा m2 v2 प्लस u2 इंटू v2 माइनस u2, ये बनेगा m1 इंटू u1 माइनस v1 इंटू u1 प्लस v1, ये बनेगा इक्वेशन सेकेंड. सो अब हम हमारे पास दो इक्वेशन है, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये लीनियर मोमेंटम कंजर्व का रिलेशन है आफ्टर कोलिजन इन इलास्टिक कोलिजन, और यह है काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन दैट रिमेन्स कंजर्व्ड इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन. सो वी विल डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड को डिवाइड करेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट. सो ये क्या बनेगा नेक्स्ट स्टेप में, सो डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन फर्स्ट, वी विल गेट इक्वेशन सेकंड लिखेंगे हम m2 इंटू v2 प्लस u2 इंटू v2 माइनस u2 डिवाइड बाई इक्वेशन फर्स्ट है m2 v2 माइनस u2. इसी तरह इक्वेशन सेकंड का राइट हैंड साइड m1 u1 प्लस v1 इंटू u1 माइनस v1, और इक्वेशन फर्स्ट का राइट हैंड साइड है m1 इंटू u1 माइनस v1. सो इक्वेशन फर्स्ट
और इक्वेशन सेकंड को हमने डिवाइड किया, वी हैव डिवाइडेड इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पर कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, जैसे ये m2 ख़त्म हो जाएगा, v2 माइनस u2 कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी m1 कैंसिल हो जाएगा, u1 माइनस v1 कैंसिल हो जाएगा बोथ साइड्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो हमारे पास यहाँ पर रहा v2 प्लस u2 लेफ्ट हैंड साइड में, और यहाँ पर रहा हमारे पास u1 प्लस v1। तो यहाँ पर हम फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी को अलग अलग करेंगे, अलग अलग लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में। ये बनेगा v2 माइनस v1 इधर ले लेंगे, बनेगा v2 माइनस v1 इज इक्वल टू, ये बनेगा u1 माइनस u2। दिस इज इक्वेशन थर्ड। यहाँ पर हम बता सकते हैं कि हिंस इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन। सो बच्चों, जैसे हमने पहले ही बोला है, एक्सप्लेन किया ये इसमें जब इलास्टिक कोलिजन को हमने ये इसको पढ़ते थे, उसमें हमने बताया, इस वीडियो में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि v2 माइनस v1 इट इज़ द इलास्टिक कोलिजन, इट इज़ द रिलेटिव वेलोसिटी इन इलास्टिक कोलिजन जो है, जो ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है आफ्टर कोलिजन v2 माइनस v1। ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया इस वीडियो में। और ये u1 माइनस u2 को बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन। सो बच्चों, v2 माइनस v1 इज़ द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन, दैट इज़ इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन। ये मैंने ऑलरेडी पहले एक्सप्लेन किया जब ये क्वेश्चन हमने शुरू किया था। वो हेंस इन केस आपको याद रखना है, इन केस ऑफ द इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन। सो ये बच्चों, ये आपको याद रखना है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इन इलास्टिक कोलिजन in one dimension, relative velocity of separation after collision, that means v2 minus v1 is equal to relative velocity of approach before collision, that is u1 minus u2। ये हमें यहाँ पर इक्वेशन थर्ड मिल गई। सो नाउ हम पढ़ेंगे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और रेजिलेंस। सो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और इसको बोलते हैं और रेजिलेंस भी बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन हम देखेंगे क्या है। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इट इज़ डिनोटेड बाय ई। वो यहाँ पर हमने देखा दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। सो यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और कोएफिशिएंट ऑफ रेजोल्यूशन किसको बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रेजिलेंस किसको बोलते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ relative velocity of separation to the relative velocity of the approach, go that it is denoted by E, go that means coefficient of restitution or resilience is equal to, that is defined by E is equal to v2 minus v1 divided by u1 minus u2। इसको रखेंगे फर्स्ट। तो यहाँ पर हमें पता है v2 minus v1 इस बराबर u1 minus u2, ये ऑलरेडी हमने यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन थर्ड में निकाला गया। दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन, ये हमें पता है। हम यहाँ क्या करेंगे, इक्वेशन 3 को डिवाइड करेंगे बाय बोथ साइड्स बाय u1 माइनस u2। हमारे पास जो इक्वेशन थर्ड है, इक्वेशन थर्ड जो है हमारे पास v2 माइनस v1 इक्वल u1 माइनस u2, इसको हम डिवाइड करेंगे बाय u1 माइनस u2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सो इक्वेशन थर्ड क्या बनेगी, v2 माइनस v1 डिवाइड बाय u1 माइनस u2 इक्वल टू u1 माइनस u2 डिवाइड बाय u1 माइनस u2। सो बच्चों, यहाँ पर हमने इक्वेशन थर्ड को हमने डिवाइड किया बाय u1 माइनस u2। सो ये क्या बन गया, ये बन गया v2 माइनस v1 डिवाइड बाय u1 माइनस u2 इज इक्वल टू u1 माइनस u2 डिवाइड बाय u1 माइनस u2। ये हमने इक्वेशन थर्ड को डिवाइड किया u1 माइनस u2 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। सो यहाँ पर ये बन गया, यहाँ पर हम ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये बन गया v2 माइनस v1 डिवाइड बाई u1 माइनस u2 इज इक्वल टू 1। वो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकंड इक्वेशन। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि यहाँ पर हमें जब इक्वेशन थर्ड को डिवाइड किया बाय u1 माइनस u2, तो इक्वेशन थर्ड को हमने डिवाइड किया बाई बोथ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में बाई u1 माइनस u2, तो राइट हैंड साइड में 1 आ गया, कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, ये रिलेशन बन गया v2 माइनस v1 डिवाइड बाई u1 माइनस u2 इक्वल 1। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड,
क्योंकि यहाँ पर v2 माइनस v1 बड़ा u1 माइनस u2 यहाँ से निकला 1, तो इसका सब्स्टिट्यूट वैल्यू करेंगे यहाँ पर। सो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड वी गॉट e इज इक्वल टू 1, वो हमें e निकला 1। हेंस कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और रेजिलेंस ऑफ इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन ऑलवेज इक्वल टू यूनिटी। सो बच्चों, आपको हमेशा याद रखना है कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और रेजिलेंस, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और रेजिलेंस is always equal in case of elastic collision in one dimension is always equal to 1, that is E is equal to 1। ये आपको हमेशा बच्चों आपको याद रखना है। सो वी आर गोइंग टू टेक, अब हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी, कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, इसमें फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, जो इक्वेशन थर्ड हमारे पास है v2 माइनस v1 इक्वल टू u1 माइनस u2, यहाँ से हम इक्वेशन थर्ड से निकाल सकते हैं v2 निकाल सकते हैं। वो बनेगा u1 माइनस u2 प्लस v1 को यहाँ शिफ्ट किया तो ये बन गया इक्वेशन थर्ड। हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इक्वेशन थर्ड जो हमने पढ़ा कि वहाँ से हम v2 निकाल सकते हैं। v2 किसके बराबर है, u1 माइनस u2 प्लस v1 यहाँ ले लेंगे, माइनस बनेगा प्लस, जब हम राइट हैंड साइड में टर्न करेंगे, शिफ्ट करेंगे हम v1 को, ये बनेगा प्लस। सो इक्वेशन थर्ड हम इस तरह भी लिख सकते हैं v2 इज इक्वल टू u1 माइनस u2 प्लस v1। सो ये हम कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। सो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू ऑफ v2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट अप करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट में जो हमने पढ़ा उसमें हम v2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये क्या बनेगा m2 इंटू u1 माइनस u2 प्लस v1 माइनस v2। ये हमने v2 का वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किया इक्वेशन फर्स्ट में, वो बन गया m2 इंटू u1 माइनस u2 प्लस v1 माइनस u2 इज इक्वल टू m1 टाइम्स u1 माइनस v1। तो इसको ओपन करेंगे, ये बनेगा मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा m2 u1 माइनस m2 u2 प्लस m2 v1 माइनस m2 u2 इज इक्वल टू m1 u1 माइनस m1 v1। यहाँ पर कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बनेगा m2 u1, ये प्लस बनेगा m2 v1, ये इधर ले लेंगे, वो m2 u1 प्लस m2 v1 प्लस m2 u1 प्लस m2 v1 माइनस ये और ये बनेगा माइनस और माइनस, ये इन दोनों का प्लस होगा m2 u2, ये बनेगा m2 u2, ये बनेगा माइनस ट्वाइस m2 u2 इज इक्वल टू m1 u1 माइनस m1 v1। सो यहाँ पर हमने लिखा m2 u1 प्लस m2 v1 को हमने इस तरह लिखा, और ये दोनों को ऐड किया हमने, माइनस m2 u2 माइनस m2 u2, ये बनेगा माइनस ट्वाइस m2 u2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इसी तरह रहेगा m1 u1 माइनस m1 v1। सो बच्चों, ये बनेगा m2 u1 प्लस m2 v1, ये बनेगा m1 u1 माइनस m1 v1, ये माइनस m2 u2 को शिफ्ट करेंगे यहाँ पर राइट हैंड साइड में, ये बनेगा प्लस m2 u2। इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड में से शिफ्ट किया राइट हैंड साइड में, ट्वाइस m2 u2 को, ये बन गया प्लस। सो बच्चों, ये बन गया m2 v1 प्लस m1 v1, m1 v1 को इधर शिफ्ट करेंगे, ये बनेगा m2 v1, ये m2 v1 ये लिखेंगे यहाँ पर, प्लस m1 v1 ये इधर ले लेंगे, बनेगा प्लस लेफ्ट हैंड साइड में, और m2 u1 ये इधर करेंगे शिफ्ट राइट हैंड साइड में, ये बनेगा माइनस, प्लस ऑलरेडी है m1 u1 राइट हैंड साइड में, और प्लस है ट्वाइस m2 u2 ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में। यहाँ पर v1 कॉमन निकालेंगे, ये बनेगा m1 प्लस m2, v1 कॉमन निकालेंगे, ये बनेगा m1 प्लस m2। यहाँ पर u1 कॉमन निकालेंगे, ये बनेगा m1 माइनस m2। तो बच्चों, यहाँ पर इस और इसमें u1 कॉमन निकालेंगे, ये बनेगा m1 माइनस m2, क्योंकि m1 प्लस से पहले लिखेंगे, माइनस m2 बाद में लिखेंगे, प्लस ट्वाइस m2 u2। सो यहाँ पर हम v1 निकालेंगे, वेलोसिटी, क्योंकि हमें वेलोसिटी निकालनी है, कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। सो v1 ये बनेगा v1, ये इसको डिवाइड करेंगे, वो v1 बराबर है u1 इंटू m1 माइनस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस ट्वाइस m2 u2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये हमने निकाला v1 का वैल्यू, वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी जो v1 है उसका वैल्यू निकाला v1। वो वेलोसिटी, कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन हम निकाल रहे हैं, ये कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। वो v1 बराबर है u1 इंटू m1 माइनस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ये हमने डिवाइड किया इनको, ये बन गया ये रिलेशन, प्लस
ट्वाइस m2u2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ये बन गया ये रिलेशन। सो इसी तरह ये हम v1 कैलकुलेट किया, इसी तरह हम v2 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट वेलोसिटी v2 ऑफ द ऑब्जेक्ट एज फॉलोज, दैट इज v2 इज इक्वल टू, ये बनेगा u2 इंटू m2 माइनस m1 डिवाइड बाई m2 प्लस m1 प्लस ट्वाइस m2u1 m2 प्लस m1। गो जिस तरह हमने v1 वेलोसिटी v1 कैलकुलेट किया, इसी तरह हम वेलोसिटी v2 को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह से हम वेलोसिटी कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन हमने कैलकुलेट किया। सो स्पेशल केसेस हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वी विल कंटिन्यू द स्पेशल केसेस इन द नेक्स्ट वीडियो।